പുത്ര പവിത്രാത്മാക്കു സ്തുതിയോ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് പൽക്കാലവും ദൈവം നമ്മളെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ സൂമിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടി പ്രെയർ നടത്തുവാൻ തക്കോണം ദൈവം നമുക്കിടയാക്കി തരുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് വിശുദ്ധീകരണം. വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ, അന്ത്യം വരെയും വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിത്യജീവനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരായി ആയിരിക്കണം എന്ന്. ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രഭു കാ ജൻ ബന്ന मंग देकर के हमने देखा. और तीसरा विषय हमने देखा ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. പ്രഭു में वास करने का करके हमने चिंता किया. और कल का दिन हमने सुना स्वर्ग में जो है उसको ढूंढने वाला, खोजने वाला बनना मांगते. ഉയരത്തിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നവരും ചിന്തിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. ഇന്ന് പൽക്കാലം ദൈവം അഞ്ചാമതായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി തരുന്നത് ദൈവഭക്തിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ ദൈവഭക്തിയും ദൈവവിശ്വാസവും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം. परमेश्वर का भक्ति और परमेश्वर में विश्वास हमारे अंदर होना मांगते करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार करने वाला एक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर का भक्ति में, विश्वास में जीना मांगते करके उधर से हमें मालूम पड़ते हैं. अब उसके लिए हम एक वचन चिंता करेंगे. 2 पीटर 3 अध्याय का 11वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक. രണ്ട് പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 11-ാം വചനം തൊട്ട് 13 വരെ നമുക്ക് വായിക്കാം. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: ഇങ്ങനെ ഇവയൊക്കെയും അഴിവാനുള്ളതായിരിക്കയാൽ ആകാശവും ചുട്ടഴിവാനും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ വെന്തുരുകുവാനുമുള്ള ദൈവ ദിവസത്തിൻ്റെ വരവ് കാത്തിരുന്നും ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര വിശുദ്ധ ജീവിതവും ശക്തിയും ഉള്ളവരായിരിക്കണം. എന്നാൽ നാം അവൻ്റെ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിന് പുതിയ ഭൂമിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. നോക്കിക്കേ, സ്വർഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നാം എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദിയിലൊന്ന് വായിച്ചാട്ടോ. हिंदी में पढ़ो. जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति से कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिनों की बाट किसी रीति से जोहाना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाए और आकाश के गण बहुत ही धार्मिकता का वास करेगी. आमीन, हालेलुया. परमेश्वर उधर बोला है परमेश्वर का इस दुनिया का सभी चीज जल जाएगा और परमेश्वर का दिन आने वाला है. उसके लिए हम वाट जोते हुए रहने का, उसके लिए वाट जोते हुए कैसा रहने का, बहुत ही तकलीफ के साथ वाट जोना पड़ता है. परमेश्वर का दिन आने का समय हम परमेश्वर का दिन में प्रवेश करने के लिए हमें बहुत ही तकलीफ के साथ इस दुनिया में जीना पड़ता है. बहुत अच्छी रीति से परिश्रम कर कर हमें जीना पड़ते हैं करके उधर से मालूम पड़ता है. तो और लिखा है उसके लिए
कौन सा चीज के लिए हमें तकलीफ उठाने का? क्योंकि उधर लिखा है तुम्हारा पवित्रता और भक्ति बने रखने के लिए। तो हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार होकर, नहीं तो आशा रखकर बैठने वाला व्यक्ति है, तो हमारा आशा का पूर्तिकरण होने के लिए हमें क्या करना मांगते हैं? हम बहुत ही तकलीफ के साथ परमेश्वर का हम तकलीफ उठाकर हमें जीना है। कौन सा तकलीफ? किसके लिए तकलीफ उठाने का है? हमारा भक्ति बने रखने के लिए और हमारा पवित्रता बने रखने के लिए। अभी हमें मालूम है दुनिया का अंत होने का समय, सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ नाश होएगा, सब कुछ इस दुनिया भी खत्म होने वाला है। उस समय हम कोई भी गलत करना बैठे तो हमारा भक्ति उस टाइम में भी बने रखने के लिए, उस टाइम में भी हमारा विश्वास बने रखने के लिए हम कोशिश करने का करके परमेश्वर बोल रहा है। तो നമ്മൾ സകല മൂല പദാർത്ഥങ്ങളും ആകാശം അഴിവാനുള്ളതാകിയാൽ, ഇങ്ങനെ ഇവയൊക്കെ അഴിവാനുള്ളതാകിയാൽ ആകാശം ചുട്ടൊഴിവാനും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ വെന്തുരുകുവാനുമുള്ള ദിവസത്തിൽ, ദൈവ ദിവസത്തിൽ ത്തിൻ്റെ വരവും കാത്തിരുന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര വിശുദ്ധ ജീവിതവും ഭക്തിയും ഉള്ളവരായിരിക്കണം. എന്നാൽ നാം അവൻ്റെ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായി കാത്തിരിക്കുന്നു. तो वो भक्ति हम बने नहीं रखेगा, तो वो पवित्रता हम बने नहीं रखेगा, तो हमारा परमेश्वर का वादा होने वाला नया आकाश और नया भूमि हमें, और भूमि में हमें प्रवेश कर नहीं सकेगा। इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारा विश्वास बने रखो, तुम्हारा विश्वास बने रखो, तुम्हारा भक्ति बढ़ते रहना मांगते हैं। कितना भी तकलीफ आने दो, कितना भी दुख आने दो, कितना भी प्रश्न आने दो, तुम्हारा भक्ति को बने रखना बहुत ही जरूरी है करके उधर से हमें मालूम पड़ता है। तो परमेश्वर का भक्ति में बने रहने के लिए हम कितना कोशिश करते हैं, हम कितना कोशिश करके परमेश्वर का भक्ति में बने रहते हैं और परमेश्वर का विश्वास में बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। पहले पत्रुस का पहले अध्याय का 7वां वचन हम पढ़ेंगे। पहले पत्रुस 7वां अध्याय का पहले अध्याय का 7 ऐसा लिखा है, അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ പൊന്നിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന വിലയേറിയത് എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പുകഴ്ചയ്ക്കും തേജസ്സിനും മാനത്തിനുമായി കാണുവാൻ അങ്ങനെ ഇടവരും. അവനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നു, കാണാതെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തമായ ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും പറഞ്ഞു തീരാത്ത മഹിമയുള്ളതുമായ സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. देखो उधर लिखा है परमेश्वर का विश्वास का टेस्टिंग, परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास कितना है उसका टेस्टिंग होएगा करके लिखा है यीशु का दूसरा आगमन के समय में। നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന വിലയേറിയത് എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. तो നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയുള്ളതായി മാറണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിലയുള്ളതായി മാറിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനം നഷ്ടപ്പെടും.
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എപ്പോഴും ദൈവം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് ആ വിശ്വാസം ദൃഢവിശ്വാസമായിരിക്കണം, സത്യവിശ്വാസമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ വിശ്വാസം എപ്പോഴും നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഉദർ हिंदी में लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। सोना भी नाशमान है करके उधर लिखा है। हम सोना बहुत मूल्यवान करके जमा कर रखते हैं, मगर इधर परमेश्वर का वचन में लिखा है सोना भी नाशमान है, मगर कौन सा नाश नहीं होएगा? हमारा विश्वास, दृढ़ विश्वास कभी नाश होना नहीं मांगते। परमेश्वर का भक्ति वो सोने के समान नाश होना नहीं मांगते। और उधर लिखा है यीशु मसीह के प्रकट होने का प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। परमेश्वर का बहुमूल्य, उधर लिखा है यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे है। ये सब चीज यीशु मसीह को आदर मिलने के लिए हम करने का। इस भूमि में यीशु का आदर दिलाने वाला कौन है? उनका विश्वासी लोग है, उनका भक्ति में जीने वाला लोग है। तो ये जो कुछ हम करते हैं हमें स्वर्गराज्य पहुंचने का है। और एक बात है, परमेश्वर को आदर दे रहे। हालेलुया। मनुष्यों के सामने हम परमेश्वर को आदर दे रहे। यदि हम विश्वास में बढ़ रहे और भक्ति में बढ़ रहे तो इस दुनिया का मनुष्य के सामने हम आदर कर रहे मेरे यीशु को। और आदर करने के साथ साथ हमें क्या करना मांगते हैं? हमारा आनंद काल का राज्य भी प्राप्त करना मांगते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को भूमि में आदर करेगा और हमारा विश्वास बढ़ते 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 हम स्वर्ग राज्य का अवकाशी भी बनना मांगते हैं। हालेलुया। इधर खाली परमेश्वर का वचन घोषण कर दूसरों के लिए प्रार्थना कर जी कर मरने के लिए नहीं है। वो विश्वास में बढ़ने वाला, सुसमाचार फैलाने वाला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला किधर पहुंचना मांगते हैं? स्वर्ग राज्य में पहुंचना मांगते हैं। खाली इधर सुसमाचार दे के, बाइबल पढ़ा के, प्रीचिंग करके जीने से हम परमेश्वर को आदर तो देते हैं दूसरा मनुष्यों के सामने नहीं, उसके ज़्यादा परमेश्वर का स्वर्गराज्य पहुंचने के लिए हमें प्रवृत्ति में लाना पड़ेगा करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है। तो परमेश्वर का राज्य प्रवेशन के लिए विश्वास मांगते करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है। तो हमारे अंदर का विश्वास कितना बढ़िया है, कितना बड़ा विश्वास है करके हमें खोजना मांगते। और वो विश्वास का दृढ़ता कितना भी इस दुनिया जल जाएगा तो भी, इस दुनिया का चीज़ जल जाएगा तो भी मेरा विश्वास को कमी नहीं लाने का, नहीं आने का करके हमें चिंता रखना मांगते। हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास का दृढ़ता परमेश्वर खोजने का समय है, नहीं तो उसका मूल्य करने का समय है। हमारा विश्वास को कोई मूल्य नहीं है करके बोलना नहीं मांगते। हमारा विश्वास मूल्यवान है करके परमेश्वर टेस्टिंग करने का समय है, हमारे से बोलना मांगते। हालेलुया। ऐसा एक विश्वास लेकर हमें जीने का है, ऐसा एक विश्वास हमारे जीवन में हमें लाना है। हालेलुया। इसके लिए हमारा परमेश्वर का आने का समय ये सब होएगा। मगर सभी लोग अभी से मेरे परमेश्वर आने वाला है, इसके लिए अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार कर पवित्रता में रहकर
उसमें से जरा भी पवित्रता नष्ट नहीं होने के लिए और भक्ति कम होने के लिए नहीं देने का करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर हमारा विश्वास का टेस्टिंग करने का समय है। हमारा विश्वास परमेश्वर के सामने बहुमूल्य लगने के लिए हम कोशिश करेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे और प्रयत्न करते रहेंगे करके। और उसका पहले पीटर का 4 का 8वां वचन हम पढ़ेगा तो सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। हालेलुया। पहले पीटर का 4 का 7 मैंने बोला था। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, के लिए सचेत रहो। इसके लिए प्रार्थना के साथ सुबोध से सज्जित रहने का करके परमेश्वर उधर से हमें बोल रहा है। तो सब बातों का अंत होने वाला है, सब चीज का अंत होने वाला है। इसके लिए हमें क्या करना मांगते हैं? हमारा विश्वास बने रखने के लिए, हमारा भक्ति बने रहने के लिए और बढ़ते रहने के लिए हमें क्या करना मांगते हैं? प्रार्थना को वो सुबोध से प्रार्थना करना मांगते करके उधर लिखा है। तो उसका 7वां वचन में और एक बार पढ़ेंगे, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और 8वां वचन में क्या लिखा है? उधर लिखा है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। तो हमारे सब बातों से बढ़कर श्रेष्ठता से हमें सबसे प्यार रखने का, अधिक प्रेम रखने का, अधिक प्रेम रखना। एक दिन हमारा प्रेम बढ़ते है क्या, घटते है क्या, ये परमेश्वर देखते हैं। हम विश्वासी है, हम भक्ति में जी रहे तो हमारा प्रेम बढ़ना मांगते हैं, अधिक बढ़ना मांगते हैं और बोल रहे क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। क्यों हमारा विश्वास कम होते है? क्यों हमारा भक्ति कम होते है? हमारा विश्वास कम होते है, इसके लिए हमारे अंदर पाप आ जाता है, प्रेम नहीं है, झगड़ा नहीं तो कहीं ना कोई पाप हमारा जीवन में आ जाता है। इसके लिए हमारा भक्ति कम हो जाता है, हमारा विश्वास कम होता है, परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। इसके लिए हमारा पापों को ढांपने के लिए हमें परमेश्वर एक व्यवस्था दिया है, अधिक एक दूसरे को प्रेम करो, यही श्रेष्ठ बात परमेश्वर हमें सिखा रहा है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का विश्वास में बने रहकर हमें आगे बढ़ेगा तो स्वर्गराज हमें मिलेगा। रोमियों का लेखन में रोमर 15 का 13 हम पढ़ेंगे। रोमर 15 का 13 റോമരുടെ പുസ്തകം ലേഖനം 15ന്റെ 13 നമുക്ക് വായിക്കാം. എന്നാൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയിൽ സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി വിശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള സകല സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। उधर क्या लिखा है? പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയിൽ സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി വിശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള സകല സന്തോഷവും समाधानവും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ. विश्वास करने के साथ क्या क्या मिल जाता है करके उधर लिखा है.
प्रत्याशा का समृद्धि होने से, प्रत्याशा क्या है? मेरे यीशु आएगा, मेरे यीशु आएगा, मेरे यीशु आने का समय मेरा विश्वास को मोल देगा, मेरा विश्वास को मापेगा, मेरा विश्वास का टेस्टिंग करने का समय, मेरा विश्वास कैसा है करके देखने का समय, हमारा विश्वास मूल्यवान रहने का। ये मूल्यवान विश्वास लेकर जीने वाला को क्या मिल जाता है करके लिखा है, पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा प्रत्याशा में मीन्स होप में समृद्धि आ जाता है। मीन्स हम विश्वास में बढ़ते रहेगा तो हमारे यीशु प्रभु का आगमन के बारे में, मेरे यीशु प्रभु का आगमन के बारे में और मेरा स्वर्ग राज्य का प्रवेश के बारे में हमारा प्रत्याशा रहते हैं, हम आशा रखते हैं। इसके लिए वो आशा बढ़ते रहेगा करके लिखा है। और कुछ बात का बढ़ाई उधर लिखा है, हमारा आशा का बढ़ाई होते हैं और विश्वास करने के साथ हमारा खुशी और समाधान बढ़ता रहेगा। हालेलुया, हमारा खुशी और समाधान बढ़ते रहेगा। हिंदी में और एक बार पढ़ेंगे, तो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। देखा, हमारा आशा का कभी आशा करने वाला चीज नहीं मिलेगा तो अपने को बहुत दुख होते हैं। तो परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हें इस दुनिया में खुशी मिलेगा विश्वास के द्वारा और समाधान मिलेगा और तुम्हारा आशा का बढ़ाई भी मिलेगा। हालेलुया, तू आशा करने वाला चीज तुम्हें मिलते रहेगा करके बोल रहा है परमेश्वर। इसके लिए हमारा विश्वास का कमी कभी नहीं होने का करके लिखा है। तो विश्वास भक्ति से जीने का, विश्वास से जीने का और भक्ति में स्थिरता रखने का। बहुत ही लोग है भक्ति है, भक्ति में जी रहे किस चीज के लिए? थोड़ा प्रार्थना मिलने के लिए, प्रार्थना का विषय एक एक विषय रखने का समय हम वो मिलने के लिए बहुत भक्ति दिखाएगा, बहुत बड़ा विश्वास दिखाएगा, मगर वो सब मिलने के बाद नहीं तो नहीं मिलेगा तो हमारा भक्ति घट जाता है, कम हो जाता है और हमारा विश्वास भी कम हो जाता है। मिलेगा तो भी भक्ति कम हो जाता है, नहीं मिलेगा तो भी भक्ति कम हो जाता है। क्योंकि मिलेगा तो हाँ प्रार्थना मिल गया, थोड़ा दिन में हमारा पहले के तरह हमारा जीवन बन जाता है। और नहीं मिला हमारा प्रार्थना का जवाब उत्तर नहीं मिला तो जल्दी का जल्दी हमारा भक्ति कम हो जाता है, विश्वास कम हो जाता है। और ऐसा भक्ति परमेश्वर चाहता नहीं है। परमेश्वर चाहता है हमारा भक्ति, हमारा विश्वास हमें स्वर्ग राज्य पहुंच जाए। इसके लिए हमारा भक्ति का स्थिरता होना बहुत ही जरूरी है। നമ്മുടെ വിശ്വാസം സ്ഥിരതയുള്ളതായിരിക്കണം, നമ്മുടെ വിശ്വാസം സ്ഥിരതയുള്ളതായി തീരണമെന്ന് ദൈവം നമ്മെ ഈ വചനത്തിൽ കൂടി പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വിനിയ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു വചനം കൂടി ചിന്തിക്കാം. കൊലോസി ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 23 നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. കൊലോസ്യ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 23 കൊലോസിയൻ पहले अध्याय का 23 पढ़ेगा तो उधर लिखा है, ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ സകല സൃഷ്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഘോഷിച്ച് പൗലോസ് എന്ന ഞാൻ ശുശ്രൂഷകനായി തീർന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇളകാതെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരും സ്ഥിരതയുള്ളവരുമായി വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ടാൽ അങ്ങനെ അവന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും. हालेलुया। परमेश्वर के सानिध्य में खड़ा रहने के लिए हमें क्या करने का है करके उधर लिखा है, वो हिंदी में जरा पढ़िए। यदि तुम विश्वास की नींव पर रहो और
उस सुसमाचार की आशा को, जैसे तुम नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और उसका में पौलुस सेवा बने हो। देखो उधर लिखा है तुम्हारा प्रत्याशा हिलना नहीं मांगते करके उधर लिखा है। प्रत्याशा तुम्हारा आशा हिलना नहीं मांगते तो तुम्हें क्या करना मांगते? तुम सुना हुआ सुसमाचार, तुम सुना हुआ सुसमाचार। बच्चे लोग को बोलो आवाज नहीं करने का, बोलो बाहर बाहर जाओ, बोलो बहुत आवाज आ रही. നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇളകാതെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരും സ്ഥിരതയുള്ളവരുമായി വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ടാൽ അങ്ങനെ അവന്റെ മുമ്പിൽ परमेश्वर के सन्निधि में खड़ा रहने के लिए हमें स्थिर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है. यदि हमारे अंदर स्थिरता, विश्वास में स्थिरता नहीं है तो परमेश्वर के सामने हम खड़ा नहीं रह सकेंगे. हमारा आशा का आशा पूरा नहीं होएगा करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. और हिंदी वाइचाल है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिस प्रकार प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलोस सेवक बना है. हालेलुया. पौलोस सेवक बना, इसके लिए कौन सा सुसमाचार? सुसमाचार विश्वास पर दृढ़ बने रहो करके उधर लिखा है. जो सुसमाचार सुनकर हमारा विश्वास में हम दृढ़ बनते रहने का करके लिखा है. ये विश्वास का विश्वास हिलेगा तो हमारा आशा हमें नहीं मिलेगा. हमारा आशा क्या है? स्वर्ग राज्य पहुंचना. मेरे यीशु आएगा मुझे लेने के लिए, तभी मुझे यीशु के साथ जाने का है. वो आशा का पूर्तिकरण के लिए हमें सुसमाचार सुनकर हमारे अंदर आया हुआ विश्वास में दृढ़ रहना पड़ेगा. हमारा विश्वास हटना नहीं मांगते, हिलना नहीं मांगते. मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्या ये सोच भी हमारे अंदर नहीं आना मांगते. बीमारी आएगा तो भी, दुख आएगा तो भी, कष्टता आएगा तो भी, काम छूट जाएगा तो भी हमारा विश्वास दृढ़ रहना मांगते. बहुत कुछ हलचल, कष्टता, दुख इस दुनिया में हमें सहन करना पड़ेगा, मगर वो कष्टता के बीच में हमारा विश्वास हिलना नहीं मांगते. वही परमेश्वर देखते हैं. ये इतना बड़ा कष्टता आने का समय है, हमारा विश्वास हिलते है क्या? हम दृढ़ विश्वासी है क्या? ये परमेश्वर खोजते हैं हमारे अंदर. इसके लिए परमेश्वर का उस दृढ़ विश्वास में बने रहने के लिए प्रभु हमें कृपा देने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं. कितना भी कष्टता आने दो. परमेश्वर यीशु प्रभु बोला है, दुनिया में तुम्हें कष्टता है, मगर मैं कष्टता को जीत गया है, दुनिया को जीत गया है. इसके लिए तुम्हें भी जीताएगा. നിങ്ങളെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും, കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും. പക്ഷെ നീ വിശ്വാസത്തെ സ്ഥിരതയുള്ളവനായി നിൽക്കണം. तुम विश्वास में स्थिरता रखकर नहीं बैठेगा तो तुम्हारा कष्टता से तुम छूटेगा नहीं. तो इसके लिए परमेश्वर, जीता हुआ परमेश्वर के नाम में हम विश्वास रखते हैं. जीव उठा हुआ परमेश्वर यीशु प्रभु के नाम में हम विश्वास रखते हैं. इसके लिए उस परमेश्वर का नाम का नाम को हम ऊंचा रखने के लिए हमारा विश्वास हिलना नहीं मांगते. तो हमारा विश्वास हिल गया तो हमारा स्वर्ग राज्य प्रवेशन तकलीफ में पड़ेगा. इसके लिए हम पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे. परमेश्वर के सन्निधि में सुना हुआ वचन के अनुसार
विश्वास का दृढ़ता में जीने के लिए प्रभु हमें कृपा दीजिए करके हम प्रार्थना करेंगे। आज का ये मीटिंग में परमेश्वर हमें आशीष करेगा यदि हमारे अंदर भक्ति और विश्वास बढ़ते रहेगा तो। कितना भी कोरोना बहुत तकलीफ से हमें नाश कर रहा है, मगर उस कष्टता को जीतने का है। हमें कष्टता को जीतकर हमें बलवंत परमेश्वर के हाथों से कृपा पाने का है। कष्टता को जीतने के लिए कृपा दीजिए करके आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन। നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കേൾപ്പിക്കാം. കേട്ട വചനപ്രകാരം കർത്താവെ ജീവിപ്പാൻ തക്കോണം ദൈവമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ നിൽപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ. കർത്താവെ വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ. കർത്താവെ സ്തോത്രം. കർത്താവ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പാപം കർത്താവ് മറയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ സ്നേഹമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ കർത്താവ് വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം. കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൃപ തോന്നി കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. എല്ലാവരും ഈ വചനം കേൾക്കുന്നതോടൊപ്പം എല്ലാവർക്കും അത് അയച്ചു കൊടുക്കുവാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.